Hello students, it is विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे। पहले हमने अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया था और फिर उसको इंटीग्रेशन मेथड से भी प्रूव किया था। और हमारे पास था पहली जो इक्वेशन हमारे पास थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, initial velocity, acceleration and time. If you have v, u and the t, then you will easily calculate a. Second equation we have v square minus u square is equal to 2as. In this equation we have final velocity, initial velocity, acceleration and the displacement. Because our motion is in the linear, ऐसा motion है ना हमारा, motion in a straight line, uniformly accelerated. इस केस में distance covered by the particle and the displacement both are same. Both are same. Distance and displacement both are the same. And then अब इसमें देखिए आप, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है? ये बात करता है कि हमारे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, एज द टाइम बीइंग, जैसे जैसे टाइम जाता है यहाँ जाके ये वेलोसिटी v हो जाती है, हैविंग एक्सेलरेशन a, और इस समय यहाँ से यहाँ तक t टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ s. If we know, it means if we know the value of final velocity, initial velocity and acceleration, we will easily calculate the distance covered by the particle. And the next one, the distance covered by the particle is equal to s is equal to ut plus half at square. These are the three equations. These are the three equations. What is this? It is the distance traveled by a particle in time t. Distance traveled by particle in time t. The time interval is t, then the distance covered by the particle is s is equal to ut plus half at square. Yes. Then think again, what is the value of the distance, what is the distance covered by the object or the displacement when the time interval is p? When the time in time p I have replaced the t by p, then we have s is equal to up plus half a p square. Yes, it is the distance in t second. Yes, it is the distance in p second whenever the time is t1. When the time is t1, then we have ut1 plus 1 by 2a t1 square and here s. It is the distance covered by the particle when having u is the initial velocity and a is acceleration. In time t1, the distance covered by the particle is s is equal to ut1 plus half a t1 square. जब हमारा टाइम t है तो यहाँ t आया, जब टाइम p है तो p आया, और जब टाइम t1 है तो हमारे पास क्या आया? t1 आया हमारे एक्सप्रेशन में, जो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा. यस. अब मैंने इन ये तीनों ही एस है हमारे पास. यदि डिस्प्लेसमेंट बार बार टाइम बीइंग अलग अलग टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ले रहे हैं, तो हमने उनको क्या किया? उनकी नेमिंग की है. देखिए, एस इन टाइम टी इट इज एस टी, इन टाइम पी इट इज एस पी एंड इट इज टाइम टी वन इट इज एस टी वन. What do you mean by ST1? Yes, think about ST2. What is this? It is the distance
ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in time t2, in time t2. yes, it means, चलो दोबारा देखते हैं। ये हमारा यहाँ इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की है। उससे पहले भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ रहा है। यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन शुरू हुई s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0, हेयर s इज इक्वल टू 0, यस, स्टार्टिंग में s एंड वेलोसिटी इज u। जब ये ऐसे लीनियर मोशन में चल रहा है, यदि 5 सेकंड के बाद, अब t तो मैंने ऐसे कर दिया 5 सेकंड, t इज 5 सेकंड, और हमसे कोई पूछता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड, देन वी कैलकुलेट एस 5 इज इक्वल टू u इंटू 5 प्लस 1/2 a t स्क्वायर 5 square. yes, distance traveled in 10 second as 10, u into 10 plus 1/2 a 10 square, a 10 square. yes, इट मीन्स अब हमें इतना तो पता चला है कि यदि कोई हमें ये पूछता है कि S15 का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S15, बताइए, सोचिए। यस, S15, व्हाट इज S15? इट मीन्स टोटल डिस्टेंस covered in 15 seconds by an object of uniformal accelerated motion. What do you mean by the S20? Total distance covered by the particle in, total distance covered by the particle in 20 second, in 20 second. yes, अब S15 में S15 जो बोला है, इट मीन्स 15 सेकंड में हमारे ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, इट इज S15, इट मीन्स इट इज S15। ध्यान से देखिए, S15 मीन्स 15 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय। अच्छा, S14 का क्या मतलब समझते हैं आप? S14 मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 14 सेकंड, इन 14 सेकंड, इन 14 सेकंड। 14 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 14 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि 15th सेकंड में, 15 में नहीं, 15वें सेकंड में एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। अब तक हमारे से वो पूछ रहा था कि 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर निकालिए ऑब्जेक्ट की, हमने बोल दिया S5। फिर उसने पूछा 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज S10। फिर उसने पूछा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इन 15 सेकंड, इन 15 सेकंड में। देखिए, ये 5 सेकंड की दूरी है, ये 10 की है और ये 15 की है, ये 15 की है, S15।
अब उसने हमसे पूछा है कि सिर्फ जब 40th सेकंड, जो 14वां सेकंड है वो हमारा खत्म हुआ, सिर्फ 15 सेकंड में, सिर्फ पहली लास्ट रे जो 15th नंबर पर जो सेकंड है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना है। एस 15th, इसको मैंने ऐसे लिख दिया एस 15th, 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय की उसने, तो हमने इसको लिख दिया कि भाई हमारे पास एस 15 तो है, 15 सेकंड में इतनी कवर की, उसमें से 14 सेकंड की हमने माइनस कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ना चाहते हैं, वो ये है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a particular second। in a particular second, in a particular second, 5th सेकंड, 12वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 14 में कितना हुआ। अब हम वो फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि 20 सेकंड में दूरी बताओ, ये नहीं 20वें सेकंड की दूरी, 20th सेकंड में। कोई हमारे से पूछता है कि 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, एस 10th, ये चाहिए। चलो मानते हैं, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट द इनिशियल velocity of the object is u and a is the uniform, a is the uniform acceleration, a is the uniform acceleration, then a is the uniform acceleration. We are to find out, we are to find out the distance covered by the object in tth second, tth second, t सेकंड में, t सेकंड में नहीं, टी नंबर के सिर्फ टीथ सेकंड में देना बेटे। यहां एस टी और एस टी एच, एस टीथ में डिफरेंस है। जैसे एस 15 सेकंड में कुल दूरी, एस 15th सिर्फ 15वें सेकंड में दूरी। हम ये निकालना चाहते हैं कि टीथ नंबर के जो हमारी डिस्टेंस है, टीथ नंबर के सेकंड में वो कितनी कवर हुई है। लिखो, वी नो, एज वी नो दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टी सेकंड कितनी होती है, एस टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, द डिस्टेंस इन टी माइनस 1 सेकंड, that is as t minus 1 u of t minus 1 plus 1 by 2 a t minus 1 square। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास दो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारी यदि इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इट इज़ द डिस्टेंस
traveled in t second. It is the distance traveled in t minus 1 second. Then what about this? ये डिस्टेंस कौन सी हुई? जो टीथ नंबर के सेकंड द्वारा जो डिस्टेंस उसमें कवर होगी, जो टी नंबर का सेकंड है उसमें. तो हमारे पास क्या हुआ फिर? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी एथ सेकंड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी एथ सेकंड. The distance traveled in जी आ गई. यही हुआ ना. एस टी की कितनी थी, उसमें से एस टी माइनस 1 वाली स्ट्रेंथ हमने निकाल दी. ये हमारे पास पहले ही फॉर्मूला है. ये हुआ हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू के साथ यहाँ ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास यू टी माइनस 1/2 ए टी माइनस 1 का स्क्वायर. लो जी, एस टी और एस टी माइनस 1 की वैल्यू पुट की हमने. ये हुआ हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ए, और ये स्क्वायर है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 2a टी प्लस 1. चलो जी, अब हमारे पास हुआ यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. यस, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई. जब इन दोनों की हो रही तो ये हुआ माइनस 2 से 2 ए टी प्लस 1/2 ए. यस, देन वी हैव यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस 1/2 ए. ध्यान से देखिए इसको, माइनस 1/2 ए. इसमें मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से रखना. देखिए आप 1/2 ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर, वन मोर यू टी. यस, बचा गया, जो बचा है वो लिख लेते हैं. हमारे पास बचा u प्लस ए टी और माइनस 1/2 ए माइनस 1/2 ए. ठीक है जी. अब ये देखना, इन दोनों में से आपको कहाँ लगता है कि कॉमन आ सकता है? u प्लस ए टी माइनस 1/2. यस, सॉल्व इट. u प्लस ए 2t minus 1 divided by 2, and then at last the distance covered by in tth second, then we have u
प्लस a बाय 2t minus 1. 2t minus 1. It is the distance traveled by our object in tth second. In tth second. It means यदि हमको 10वें सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला u प्लस a बाय 2t 2 इंटू टी माइनस 1 और फॉर्मूला हुआ हमारे पास u प्लस a बाय 2 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 19 a बाय 2 19 a बाय 2. इट इज़ द डिस्टेंस 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, 10वें सेकंड में हमारा इतना डिस्टेंस होगा. ओके, ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसका न्यूमेरिकल्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी. ओके, थैंक यू वेरी मच.